Good evening, namaskar and a very warm welcome to Times Now's election yatra. Me Maharashtra madhe aahe. We are in Maharashtra and this is one of the states that has one of the most curious cases going into elections 2024 because there's a whole tsunami of a change that we've seen in the state after the 2019 elections. In 2019 elections, if the BJP Shiv Sena were together, today the Shiv Sena is fractured, the NCP is fractured, we have the Mahavikas Aghadi and the Mahayuti on the other side. How is all of this going to play out on the ground is the big question. Do people believe that Uddhav Thackeray has been cheated or betrayed by the BJP, or do they think that it is the Shinde Sena that is carrying out the true legacy of Bala Saheb Thackeray? How is this playing out on the ground? All these and much more is what we are looking at when we are in Maharashtra. Today we are in the Ratnagiri Sindhudurg constituency. This is a United Shiv Sena's bastion. It's only been Shiv Sena in the constituency, but very interestingly, this time around we have Narayan Rane, the union minister, somebody who has been with Bala Saheb Thackeray since his early days, who is contesting on a BJP ticket. This is for the very first time that we don't have the bow and arrow symbol in the constituency because the BJP is contesting for the first time in 30 years. A lot of history for the voters, for the core supporters of the Shiv Sena as well, a lot to think of before they cast their vote. More importantly, this is a much bigger battle for the core vote base of the Shiv Sena. Who does it go to? Does it go to the Shinde faction or does it go to the Uddhav faction? And can the BJP win away some of these votes? That's the big question here. Let's go across. Let's get you what the significance of this constituency is. For over 30 years, it almost seemed like there was no other party in the fray here in Ratnagiri. Since the late 1990s, this part of the Konkan coast has been hailed as a formidable fortress of the Shiv Sena. Those living in the Konkan region and particularly in Ratnagiri have long been loyal supporters of the Shiv Sena. Loyalty forged through decades of shared values and ties to Mumbai, where countless individuals from the region have sought livelihoods and opportunities. But cut to 2024 and the Shiv Sena will for the first time be contesting elections in Maharashtra not as one but as two separate entities, the Shinde faction that retained the bow and arrow and the party name, and the Uddhav faction which had to make do with the flaming torch. In Maharashtra, the battle is largely about Bala Saheb Thackerays legacy. Who is following the ideals that he followed? As you can see right behind me, in the Ratnagiri constituency, in the Ratnagiri Sindhudurg constituency, there's a Bala Saheb hand monument. So everywhere across Maharashtra, as you go around, you will see several symbols of Bala Saheb. It remains very close to the people of this entire state. More importantly, in this constituency in Konkan, this was one of the regions where the Shiv Sena had flourished in the 90s outside the Mumbai region. So this is a very significant constituency. The battle is about the legacy of Bala Saheb, but this time around, the bow and arrow symbol of the Shiv Sena is not going to be in the elections at all, because this time around, the Uddhav Sena has been given the flame, the mashal symbol that has been given by the ECI. So that's a symbol that Uddhav Sena will be contesting on. The Shinde faction is not contesting from this constituency. Instead, it's the BJP. In fact, the BJP is contesting from this constituency the very first time with Narayan Rane as the candidate, the union minister who has been with Bala Saheb Thackeray from his initial days. So it's about the legacy of Bala Saheb Thackeray. What do the Shiv Sena core supporters believe? It's about the Hindutva voters that the BJP has been eyeing. What do they believe? Who are the true Shiv Senics? That's the question that will be answered in these elections. Former Union Minister Suresh Prabhu remained the Rajapur MP from the erstwhile Rajapur Lok Sabha constituency from 1996 to 2009. In the erstwhile Ratnagiri Lok Sabha constituency, Anant Gite, another former Union Minister, held the constituency between 1996 and 2009.
It was only in 2009 that the Shiv Sena lost in this region for the first time since 1996, when Nilesh Rane, son of Union Minister Narayan Rane, contested on a Congress ticket and defeated the bow and arrow by a margin of over 40,000 votes. While the Shiv Sena has since once again recaptured their bastion with comfortable victories in 2014 and 2019, this time around the competition could be quite different here in Ratnagiri Sindhudurg. This is the first time ever that the Shiv Sena symbol of bow and arrow is not going to be in the elections. From 2019, there's been a sea of a change in 2024. This was a Shiv Sena bastion, but that was the United Shiv Sena. Cut to 2024, a lot has changed. This time around, the Uddhav Sena does not even have the symbol. It only has a flame symbol, the flaming symbol. But the bow and arrow symbol is not going to be here in the constituency at all because the BJP has fielded Narayan Rane. So the BJP is contesting from here, which means that the Shinde Sena is not contesting from here. How is this going to play out? Is it going to be the Narayan Rane factor, the Bala Sahib factor that's going to continue for the party or not? That's the question. Let's go around speaking to the people and find out. A political symbol that people of this region had become so fond of will not be there to vote for, as the bow and arrow makes way for the lotus here in Ratnagiri. Uddhav's Shiv Sena, on the other hand, has fielded two-time sitting MP Vinayak Raut from here, meaning this time the contest will be between the Uddhav faction of the Shiv Sena and the BJP, a party that has never contested the election in this constituency since this Lok Sabha constituency was formed in 2008. What does this mean for the voters, and more importantly, what does this mean for the candidates who are fighting here? Times Now's election yatra is in Ratnagiri, and we decided to get a first-hand account from the challenger, Union Minister Narayan Rane. In the Ratnagiri Sindhudurg constituency, we are catching up with Union Minister Narayan Rane, the 72-year-old who is going across the constituency campaigning. A lot of people had also come to listen to him speak. You spoke of 400 पार. पहले ये बताइए कि आपका कैंपेन कैसा चल रहा है? How is it going? What's the लहर that you're seeing? हमारा कैंपेनिंग बहुत बढ़िया चल रहा है. आप देखती होगी कि लोगों में कितना उत्साह है और इतने 2 जिला परिषद का विभाग में इतना पूरा हॉल भर के लोग आए. इसका मतलब यहाँ के लोगों का हमें सपोर्ट है और हम वन साइड चुन के आने वाले हैं, इतना विश्वास है. यहाँ पे बीजेपी पहली बार कंटेस्ट कर रही है, शिवसेना का भी बंटवारा हो चुका है, उससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है यहाँ पे? नहीं, बीजेपी भले पहली बार चुनाव लड़ रही है, मगर अभी कोकण में बीजेपी का अभी वर्चस्व बढ़ते जा रहा है. हम अभी बीजेपी में हैं, पहला शिवसेना में था, तो अभी बीजेपी में आने से पूरी ताकत बीजेपी को हमने जोड़ा है. तो मैं समझता हूँ कि यहाँ बीजेपी की परिस्थिति अच्छी है. बाला साहेब के टाइम से आप शिवसेना के साथ हैं और ये रीजन बचपन से, और यहाँ पे इस रीजन स्पेशली आप यू आर द सन ऑफ द सॉइल हियर, यू नो यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है आपका. इफ यू लुक बैक सेवरल डेकेड्स, जब आपने शुरुआत की थी तब यहाँ पे क्या सिचुएशन था, उसके बारे में कुछ बताइए हमें. देखिए, मेरा जन्म कोकण में हुआ मगर मेरा कार्य क्षेत्र मुंबई में बड़ा हुआ, एजुकेशन सब. मगर 90 में बाला साहब जी ने मुझे यहाँ भेजा विधानसभा का चुनाव लड़ने. जब मैं बीएसटी का चेयरमैन था, मुंबई कॉरपोरेशन का कॉरपोरेटर था, तो भी साहब बोले तुझे वो लोगों का डिमांड है, तू उधर जाना चाहिए. ठीक है, मैं बोला जाता हूँ और मैं आया और पहले ही बार मैं चुनाव जीता. उसके बाद टोटल 6 चुनाव में जीता. काफी पद मुझे मिले. मैं एमएलए बनने के बाद 10-12 डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो मेरे पास था. मैं बाद में मुख्यमंत्री बना, अपोजिशन लीडर 6 साल था. उसके बाद फिर वह एमएलए बना, फिर एमपी बना और फिर अभी कैबिनेट मंत्री बना. तो पिछले 30-40 साल में पोस्ट पे हूँ, लोक प्रतिनिधि हूँ और यहाँ के लोगों का मैं काफी काम किया हूँ. मोस्टली सिंधुदुर्ग का इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर मैं पर कैपिटा इनकम वहाँ के लोगों का भी मैं बढ़ाया है और वहाँ एयरपोर्ट लाया, मैं 4 लेन सड़क है, रोड आया,
वहाँ अभी कोस्टल एरिया में काफी फिशिंग के साथ टूरिज्म का बिजनेस शुरू है, तो मैं समझता हूँ कि सिंधुदुर्ग में डेवलपमेंट काफी करने से लोग समझते, और मैं मुख्यमंत्री था तो मैं कर सका, और लोग समझते हैं कि राणे ने इतना काम किया, वही काम रत्नागिरी में भी होगा, इसलिए लोग चाहते हैं। तो जब आप कैंपेन करते हैं तो लोगों को क्या बोलते हैं कि मैंने शिवसेना में हूँ, बाला साहब की उस समय से हूँ, आई हैव बीन विद द पार्टी फॉर सो लॉन्ग, मोदी जी की बात करते हैं, या आपने जो काम किया है एज चीफ मिनिस्टर, एज यूनियन मिनिस्टर, व्हाट इज इट यू से व्हेन यू गो टू वोट आस्किंग फॉर वोट्स? नहीं, देखिए, मुझे तो यहाँ के लोगों ने बहुत नजीक से, बचपन से देखा है। हर पद पे काम करने के वक्त में काफी काम, इधर हर तरह का काम किया है। यहाँ स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, महिला उद्योग, ये सब मैं प्राइवेटली बनाया है, ये कोई सरकारी पैसे से नहीं, और गवर्नमेंट के पैसे से कम आधा डजन डैम पानी के लिए, पीने का पानी और खेती के लिए मैं डैम भी बनाया, ब्रिज बनाया। मुख्यमंत्री था तो एक ही वक्त 28 ब्रिज में बनाया सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं काम एक अलग स्टाइल से मैं काम किया, महाराष्ट्र में काम किया, इसलिए महाराष्ट्र के लोग चाहते हैं। और मैं अभी बीजेपी में हूँ, तो बीजेपी ने मुझे चुनाव में लोकसभा लड़ने के लिए कहा, मैं लड़ रहा हूँ। अच्छा, तो अभी 2019 से अभी तक बहुत कुछ चेंज हो सकता है, हो चुका है ऑलरेडी। ऐसे बहुत बात भी हो रही है कि असली शिवसेना कौन है। आपके हिसाब से बाला साहेब की जो विचारधारा है वो कौन सी शिवसेना आगे लेके जा रही है, शिंदे सेना, या आप आपने तब शुरू किया था, या फिर उद्धव सेना? क्योंकि कुछ मैं अभी बीजेपी में हूँ। अभी एक शिवसेना है एकनाथ शिंदे जी का, जो असली शिवसेना है। उद्धव ठाकरे बाला साहेब जी का लड़का है, मगर वो असली शिवसेना मैं मानने को तैयार नहीं। बाला साहब जी ठाकरे, माननीय बाला साहब जी ठाकरे, इनका आइडियोलॉजी मराठी मानुस और हिंदुत्व, ये आइडियोलॉजी थी। हिंदुत्व का रक्षण करना और मराठी लोगों के हित में काम करना, इसलिए उन्हें शिवसेना को जन्म दिया। मगर बाला साहब जी के बाद हिंदुत्व छोड़कर, गद्दारी हिंदुत्व से कर मुख्यमंत्री पद के लिए शरद पवार और कांग्रेस के साथ ये गए। तो वो असली शिवसेना है नहीं। असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है, उदय सामंत की है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने बोला है कि बीजेपी ने धोखा किया उनके साथ, लोगों ने धोखा किया उनके साथ। धोखा करना ये उद्धव का स्वभाव है। कोई ने किसने धोखा उनके साथ बीजेपी ने नहीं किया है। वो चुनाव जीता, जो भी सीट आई वो मोदी जी का नाम से कैंपेनिंग करके, अलायंस के साथ आकर, अलायंस में चुन के आने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए अलायंस तोड़ के वो शरद पवार जी के साथ गए। तो आपको लगता है कि लोगों में भी ये गुस्सा होगा कि वो बाला साहब के बेटे के साथ धोखा हो गया? आपको लगता है कि ऐसा लोगों को लगता है यहाँ? बाला साहब जी के लड़के साथ धोखा नहीं हुआ, और बाला साहब जी को इन्होंने पिताजी करके जो रिस्पेक्ट बच्चे करते हैं वैसा कुछ नहीं किया है। हाँ, और ये झूठा आदमी है, ये बताएगा एक करेगा एक, झूठा है, 100% झूठा है। तो आपने कहा है कि शिंदे सेना है असली शिवसेना, लेकिन शिंदे फैक्शन ऑफ द शिवसेना ऑल्सो वांटेड टू कंटेस्ट फ्रॉम हियर। यहाँ पे आपका नॉमिनेशन की एक दिन पहले आपका नाम अनाउंस हुआ, क्या इस सीट के ऊपर कोई बहस हो रही थी? क्या है, अभी बताइए हमें इनसाइड स्टोरी, कैसा क्यों नहीं हो रहा? देखिए, नहीं, हमें बीजेपी ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। मैं कुछ सीट मांगा नहीं था, मगर बीजेपी ने कहा कि आपको चुनाव बीजेपी के लिए लड़ना है, हम लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे विनायक राउत जो हैं वो, उन्होंने अभी रिसेंटली इंटरव्यू में कहा है कि मेरे पास नारायण राणे जैसा ना पैसा है ना पावर है, लेकिन लोगों का साथ है मेरे साथ। उनको क्या उत्तर देंगे? जो आदमी इस तक पर 10 साल हो, अभी एमपी है, कौन लोग साथ है? कल उद्धव जी की मीटिंग हो गई रत्नागिरी में, 150 लोग थे, 150। अभी यहाँ देखो, ये तो जिला परिषद का 2 वार्ड का मीटिंग है,
या तो 300-400 लोग हैं, उसके साथ कोई 10 साल ने उसने कुछ नहीं किया है। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग में कुछ नहीं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना कोई जॉब क्रिएट किया, ना फैक्ट्री लाई, कुछ भी नहीं। तो उनको कौन उनके साथ जाएगा? कोई साथ नहीं है। वो खाली बोलता है। उनके साथ कौन है वो 4 जून को मालूम होगा। उन्होंने बोला है कि बीजेपी को कभी महाराष्ट्र के लोग, मराठी मानुस कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि यहाँ कोंकण के लोग बहुत पीसफुल लोग हैं, यहाँ पे उनको दंगा या माफिया ये नहीं चाहिए। जंगल को शिवसेना का तो वो तो काम है। उद्धव ठाकरे क्या काम करता है? उनका बिजनेस क्या है? कुछ भी नहीं। तो भी मर्सिडीज घूमता है, जो भी उसका चला है ना, एक एक 2-2 घर, वो दंगा बसाल करके ही है ना, उसका काम ही है। और हफ्ता जमा करना, और वो जमा करने में ये एक है, अभी जो कैंडिडेट है उसका भी काम वही है। जो भी डेवलपमेंट का काम आया उधर जाके बोलता है नहीं चालू करने का। हमारे नेता जन का बोलो। अपने यहाँ पे रिफाइनरी, बस 2-3 क्वेश्चंस। और रिफाइनरी की यहाँ पे बहुत बात हो रही है। लोग वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी वालों के लिए फेवर होगा, इसीलिए वो चाहते हैं कि रिफाइनरी हो जाए। आप कह रहे हैं कि उसके आने से जॉब्स आ सकता है। व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? देखिए, रिफाइनरी के बारे में मैं आज कुछ नहीं कहूँगा। इन्होंने, रिफाइनरी वाले ने इनको पैसा नहीं दिया। 50 करोड़ मांग रहे थे, नहीं दिया, इसलिए विरोध कर रहे हैं। हम लोग को, यहाँ के लोगों को, इधर लोगों को जॉब चाहिए। यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं और रत्नागिरी के बाहर मुंबई, पुणे जाते हैं। मैं कहता हूँ 3 लाख करोड़ रिफाइनरी खर्चा करके यहाँ आएंगी, चालू होगी, तो यहाँ कितनी जॉब क्रिएट होगी? तो उसको विरोध शिवसेना ही कर रही है। पोर्ट को विरोध शिवसेना यही कर रहा है, जो 10 साल एमएलए हो। हर काम में दिक्कत डालने वाला यही है। मराठा रिजर्वेशन के बारे में आपने बहुत स्ट्रांगली बात की है। आपको लगता है कि वो आपके फेवर में आने वाला है? वो आप जब अरे, मराठा आरक्षण का मैं चेयरमैन था और मैं 16% दे चुका था। कोर्ट में वो रिजेक्ट हो गया, मगर हम चाहते हैं 34% मराठा समाज है, तो उनको, उनके लिए 16% में आरक्षण दे चुकी थी। अभी फिर एक बार 10% आरक्षण मराठा समाज को अभी जिरंगे पाटिल के वजह से मिला है। अभी देखते हैं कोर्ट में क्या होता है। मगर मराठा समाज में सामाजिक और आर्थिक और एजुकेशन क्षेत्र में जो पिछड़े हुए हैं लोग, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। सर, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपके लिए। आपने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कहा है अभी रिसेंटली। रत्नागिरी को, सिंधुदुर्ग को, ऑफ कोर्स वी आर नोन फॉर मैंगोज, इट्स अ किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स। तो आपसे बोला गया था कि आप मोदी और राहुल जी का कंपैरिजन करेंगे। मोदी इज द किंग ऑफ ऑल पॉलिटिक्स लाइक मैंगो, देन व्हाट इज राहुल गांधी? चिक्कू बोला ना, मैं ऑलरेडी आपको बोला है। वो तो चिक्कू है, बच्चा है हमारे मोदी साहब के सामने। चिक्कू का खराब वर्ड नहीं है, स्वीट फ्रूट है वो, मगर उनका क्वालिटी बहुत कम है कंपेयरिंग मोदी जी। Thank you so much for speaking to us. Very hectic campaign trail. Amid that, thank you for taking out time for us. Let's go around and speak to the people as well, find out what's the mood on the ground. The Union Minister is confident he can buck the trend in Ratnagiri. But what's the mood like among the people? We find out on the election yatra in Ratnagiri, Sindhudurg. So from 2019, the big difference that we're talking about this time around, parties fractured, politics completely changed. What is the situation like in the Ratnagiri Sindhudurg Lok Sabha constituency? That's what we're going to be talking about. We spoke about how this is a place that's known for the Ratnagiri mangoes. I'm sure every time you look for mangoes, you would have seen Ratnagiri mangoes, and this is one of the main markets for mangoes here, and that's where we are. Now, let's speak to some of the people as well on the bitter politics that's playing out in the land of the sweet mangoes. Thank you for joining us. यहाँ पे कैसा चल रहा है इलेक्शन? Who do you think is a strong party? शिवसेना, बीजेपी, क्या लग रहा है आपको? यहाँ पे गठबंधन ही आएगा। बीजेपी सेना की सीट मारने या नारायण जी राणे का सीट के आने की संभावना बहुत ज्यादा है। As he has been the cabinet minister of the country, he is the ex-CM of Maharashtra and has been the home minister also. So there are more chances of he being elected as the candidate for the Lok Sabha. So when you cast your vote, are you going to think कि यहाँ पे local MP is going to be Narayan Rane or Vinayak Raut, or are you going to think who is going to be the Prime Minister of the country? No, we are voting for Modi basically.
any candidate who has been chosen by the BJP Sena Yuti will be elected from here. यहाँ पे do you think that there's anger that parties have been split, Shiv Sena has been split, there's also a battle going on between who the real Shiv Sena is, the Bala Sahib's legacy as well. Is that going to split the Shiv Sena votes which are going to come in favor of BJP here from the constituency? Basically, Sena is known for Hinduism, and the people who are against going the Hinduism are not the Shiv Sena. So I think Eknath Shinde is the real Shiv Sena, as Uddhav Thackeray is sitting beside Congress, for whom Bala Sahib Thackeray has opposed all the time. And if Uddhav Thackeray is supporting the Congress, then definitely that is not the original Shiv Sena. Okay, not the original Shiv Sena. Let's find out from a few others as well on who they think is the original Shiv Sena, and if the BJP contesting from here and the fact that Shiv Sena is not contesting is going to affect or not. आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन सी पार्टी स्ट्रांग है? आपको क्या लगता है किसने अच्छा काम किया है? अरे डरिए मत, बात कीजिए. चलिए, let's go and speak to a few more people as well and find out. तो आपको क्या लगता है यहाँ कौन सी पार्टी स्ट्रांग है? यहाँ शिवसेना पहली बार नहीं लड़ रही है, बीजेपी लड़ रही है इस बार, तो आपको लगता है उसका इम्पैक्ट होगा? शिवसेना का पार्ट जोड़े आया यहाँ तर शिवसेना का आएगी तो शिवसेना आएगी. तो उद्धव सेना या तो शिंदे सेना? उद्धव ठाकरे. उद्धव ठाकरे. ऐसा क्यों? अच्छा काम किया है? अच्छा काम किया है और उनका बोलचाल भी अच्छा है इन लोगों का. बाला साहेब ठाकरे का विचार वही लगा. शिंदे सेना अलग क्यों हो गई? क्या उनमें क्या झगड़ा हो गया मालूम नहीं, वो लोग अलग हुए. तो बीजेपी नहीं आएगी? बीजेपी नहीं. अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ पे? यहाँ पे बीजेपी सरकार आएगा. अच्छा, तो आप खुश हैं जो मोदी ने काम किया है, या यहाँ पे आप लोकल एमपी को देख के वोट करेंगे? बहुत खुश. मोदी ने काम किया? अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा किया. क्या 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 काम से खुश हैं आप? इतने 10 सालों में जो काम हुआ है उससे खुश हैं? इस साल में आतंकवाद मिटाया और सड़कें बनाई, 14 लाइन 4 लाइन सब सड़कें बनाई ना, इसलिए खुश है. अच्छा, तो आप इतने सालों से बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं कि शिवसेना को सपोर्ट करते आ रहे हैं? शिवसेना को पहले करते थे, मगर अभी वो अलग हो गए ना, तो अभी राणे सेना को, अपने राणे शिंदे सेना को, उनको सपोर्ट करते हैं. उनको सपोर्ट. हाँ. तो कुछ लोग बोलते हैं कि उद्धव ठाकरे को धोखा दे दिया, बाला साहेब के बेटे को धोखा दे दिया बीजेपी ने, उस पर क्या कहेंगे आप? धोखा नहीं दिया, वो तो उनका वादा था, तो उनका सीएम कम सीट के सीएम बन नहीं सकता ना, तो इसलिए वो अलग हो गए. तो बीजेपी से खुश हैं आप? हाँ. अच्छा, चलिए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं. आपको क्या लगता है यहाँ पे जब आप वोट डालेंगे तो सोचेंगे कि मोदी ने क्या किया काम, या सोचेंगे कि शिवसेना किसकी तरफ? मोदी की तरफ, मोदी जी की, क्योंकि ऊपर मोदी है, नीचे बाजू का सीट को आएगा तो कुछ उपयोग नहीं उसका, इसलिए मोदी का जरूरत है देश के लिए. अच्छा, तो देश के लिए मोदी. यहाँ पे तो मतलब देश में जो जो काम किया है उससे खुश हैं आप. कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे शिवसेना को अलग कर दिया, 2 पार्टी कर दिया, उस पर कुछ गुस्सा है बीजेपी के खिलाफ? नहीं गुस्सा, नहीं, जो हो रहा है वो ठीक है, और मोदी अच्छा है. मोदी अच्छा है. मोदी इज बेस्ट पर्सन. यहाँ पे नारायण राणे हैं बहुत सालों से. इस बार बीजेपी यहाँ से लड़ रही है पहली बार. इससे पहले शिवसेना लड़ती थी जब वो यूनाइटेड थे. इस बार 2019 से बहुत कुछ चेंज हो चुका है, उससे क्या असर पड़ने वाला है? नहीं, नारायण राणे आने वाले, नारायण राणे. मोदी का सपोर्ट है, जिधर मोदी उधर सब है. अच्छा, तो कुछ लोग बोलते हैं कि असली सेना कौन है, उद्धव सेना या शिंदे सेना, उसमें क्या बोलेंगे? शिंदे सेना. शिंदे से. ऐसा क्यों? तो ऐसा है, वही है वो. अच्छा काम उन्होंने किया. बाला साहब का अच्छा है, बाला साहब अच्छा आदमी थे, लेकिन उद्धव ठाकरे अच्छा नहीं है, ठीक नहीं तो उनका है. उद्धव ठाकरे ठीक है, लेकिन वो कांग्रेस में जाके गलती किया है बहुत बड़ी. अच्छा, कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए था. अच्छा, ठीक है, थैंक यू. So many believe that Uddhav Sena is not the original Sena, not something that they were known for. Let's also go around as well, visit the places here. We spoke about the mango sellers here. Let's also speak to a few others and find out what they think. दादा, आपको क्या लगता है इधर कौन सी पार्टी अच्छा काम करती है? पार्टी कौन सी अच्छा काम करती है, इससे ज्यादा ये है कि मोदी को ऑप्शन ही नहीं है कोई. मोदी सिर्फ एक ऑप्शन है, तो अभी वोट डालेंगे तो बस कौन, ऑप्शन ही नहीं है, तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये देख के डालेंगे? मोदी ने अच्छा काम. मोदी बनेगा, दूसरा ऑप्शन कौन नहीं. भाजपा में भी पर ऑप्शन नहीं है, दूसरी पार्टी में भी नहीं, दूसरी पार्टी की गारंटी भी नहीं है. कोई भी आया तो इधर से उधर जाएगा, लेकिन एज अ कंट्री आप सोचेंगे तो मोदी को ऑप्शन नहीं है. तो उन्होंने अच्छा काम किया है कि ऑपोजिशन में कोई नहीं है इसीलिए मोदी को डालेंगे? नहीं, अच्छा किया है, अच्छा काम किया है. जो भी किया अच्छा किया है. सब उनका काम पब्लिक तक नहीं पहुंचा है. थोड़ा पब्लिसिटी की और जरूरत है. और थोड़ा दूसरा क्या होता है, बाकी लोग जो है तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों को ऐसा बताते कि ऐसा है, उसका गलत अर्थ निकालते हैं, ऐसा होता है. लेकिन मोदी को अभी तो ऑप्शन कोई नहीं है. राहुल गांधी छोड़ो, कोई भी नहीं है, सब मिला के भी नहीं है.
अच्छा, तो यहाँ पे शिवसेना 2019 से अभी तक बहुत कुछ बदल चुका है, शिवसेना बढ़ चुका है, एनसीपी भी बढ़ चुका है, उससे क्या असर पड़ने वाला है? नहीं बीजेपी पे वैसा ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। कुछ वो रहेगा अगर कि डिवाइड नहीं होते तो भी वो आते, ज्यादा बस से आते। अभी बोल रहे 400 और 420 से आते, ये थोड़े 400 से, लेकिन आएंगे तो जरूर। अच्छा, थोड़ा डिफरेंस ये हुआ है कि पश्चिम बंगाल में 78% वोटिंग हुआ है, इधर बाकी राज्यों में 60% तक गया है। तो जो वोटिंग कम हुआ है उससे लगता है कि वो 400 के आगे जाएंगे क्या पीछे जाएंगे, आएंगे तो मोदी। अच्छा, तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट सबके लिए मोदी। हाँ, पर्याय नहीं है दूसरा। अच्छा, ठीक है, thank you. So many believe that for development, for the work that has been done, more than anything, the fact that there are no other viable options as well in the opposition as well, no strong decision coming in this regard. Because of all of these reasons, they believe that that's the one vote that we can give for. What do you think? आपको क्या लगता है कि यहाँ कौन सी पार्टी ने कौन सी पार्टी है जो अच्छा काम करती है? इसके बारे में तो नहीं पता मैडम। अच्छा, तो आप मोदी से खुश हैं? प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मैं एक्चुअली इधर का नहीं हूँ, तो इसलिए इधर का आइडिया नहीं है मुझे। इधर का आइडिया नहीं है। ओवरऑल आप मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे कि कुछ चेंज चाहेंगे? चेंज चाहिए। चेंज चाहेंगे, ऐसा क्यों? तो क्या करते, हर बार एक बार ये के हाथ में सत्ता देंगे तो वो ज्यादा ये करते हैं, इसके लिए चेंज चाहिए हमेशा। तो कौन है स्ट्रांग पार्टी? कांग्रेस, शिवसेना सब साथ में आके करेगी तो खुश रहेंगे? यस, अच्छा काम करेंगे। अच्छा। यहाँ पे जब सरकार थी उनकी तो खुश थे, अब क्या काम किया उन्होंने, क्या क्यों चाहते कि अब वो आ जाए, कि क्या डिफरेंस आएगा? डिफरेंस के बारे में तो नहीं पता इतना, इतना नहीं, राजनीति चेंज चाहिए। Okay, all right. Some also say that they're looking for some change to come in, not just in the country, saying that it's a time for change. They believe that the opposition parties can come together and bring in a good change in the country. Let's also go around the constituency, speaking to more people as well to get you the voices of the people. Times Now's election yatra is in Ratnagiri, Sindhudurg, a constituency that for 3 decades has seen the dominance of Shiv Sena, much like the rest of the Konkan region. Which is why this time around, the decision for Shinde's Shiv Sena to part ways with Ratnagiri wasn't an easy one, and it wasn't without a fight. But Maharashtra Minister Uday Samant's brother Kiran also wanted to contest from this constituency. That is, the Shinde Sena wanted to contest from this constituency. Uday Samant himself is also a very, very popular MLA. He's the MLA from this constituency. He's a Maharashtra minister as well. Things also came to a head when Narayan Rane also had a public spat with the Shinde Sena supporters and the leaders on social media X. But it looks like it all cleared out. Now Uday Samant has decided to back Narayan Rane's candidacy from the constituency. In fact, as he was campaigning across the constituency, Uday Samant was with him saying anything is okay. Even they're ready to even cede this seat to ensure that the Mahavikas Aghadi does not come to power. With Narayan Rane announcing that this could be his last election, the fight for him is about establishing his supremacy in the Ratnagiri and Sindhudurg districts. On the other hand, Uddhav Thackeray is looking to cement his party as a real Shiv Sena and consolidate all the votes that once went to the undivided Shiv Sena from this region, making this a key battle between the Ranes and the Thackerays. So which side are the voters on in this battle for prestige? We're in the Ratnagiri Sindhudurg constituency, and what is the impact that the split in Shiv Sena is going to have? That's a big question we're going to be asking. We've come to a Vada Pav joint in Maharashtra. Of course, Vada Pav is synonymous with the cuisine here. I'm just going to ask around on what is the situation like, what are the impact that it's going to have that Shiv Sena is now split. भैया 2 मिनट के लिए आपको डिस्टर्ब करूंगी. यहाँ पे इलेक्शन कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है. अच्छा चल रहा है. यहाँ पे इसको शिवसेना का गढ़ माना जाता है. इस बार क्या डिफरेंस आ रहा है आपको? अभी तो 2019 से अभी तक तो बहुत ज्यादा चेंज शिवसेना का ही गढ़ है इधर, अभी भी उनका है. इस बार तो लेकिन शिवसेना नहीं लड़ रही है, इस बार तो बीजेपी लड़ रही है और उद्धव सेना है, लेकिन बो एंड आरो वाला सिंबल नहीं रहेगा. उसमें क्या डिफरेंस आएगा? अभी बीजेपी का जोर है इधर. बीजेपी. तो नारायण राणे ने यहाँ पे आप ये उनको माना जाता है कि ये उनका शहर है. आपको क्या लगता है, वैसा है उनका गुडविल? उन्होंने काम किया है पहले? नारायण नहीं, उदय सामंत ने किया ना. उदय सामंत को मत देंगे, फिर नारायण ने ना दोनों अच्छा काम किया है. तो अभी यहाँ पे जो एमपी हैं उन्होंने अच्छा किया है काम. हाँ.
हाँ। बहुत अच्छा काम किया। तो आपको लगता है कि बीजेपी के खिलाफ कुछ गुस्सा या एंगर हो सकता है क्योंकि उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, ऐसा कुछ है यहाँ पे? नहीं, ऐसा तो कुछ यहाँ नहीं। पे की इश्यूज क्या क्या है बताइए। दादा आप यहाँ से हैं? हाँ, यहाँ पे शिवसेना का गढ़ है इधर? मैं शिवसेना का नहीं है, पहले से ही बीजेपी का है। अच्छा, तो इस बार बीजेपी पहली बार 30 साल में यहाँ से लड़ रही है, तो बीजेपी नारायण राणे जीत जाएंगे? हाँ, राणे साहब को चांस ज्यादा है क्योंकि 77 से इधर बीजेपी का उम्मीदवार है, वो बापू साहब परोड़ेकर से, वो लोकसभा में जीत के गए थे और दंडोते भी गए थे, दंडोते राजापुर से गए थे। तब मैंने पहला वोटिंग किया था। तब से अभी 48 बरस हो गए। तब ये अच्छा है, अभी तो के लिए अच्छा है, अच्छा है एकदम। और ये जो कर्ज वगैरह ये करते हैं ना, माफी देते हैं, वो धान्य फ्री देते हैं, इसका उनको लाभ मिलेगा। हाँ, गैस महाराष्ट्र में लेकिन शिवसेना अब 2 पार्टी बन चुकी है, वो स्प्लिट हो चुका है, उसका कुछ इम्पैक्ट होगा? उद्धव सेना एक तरफ, दूसरी तरफ शिंदे सेना? नहीं होगा, क्योंकि नारायण राणे साहब है ना, वो 7 उम्मीदवार को जब वो कांग्रेस में गए थे तब उन्होंने कांग्रेस के भी 7 उम्मीदवार इलेक्शन में लाए थे और बाद में वो स्वाभिमान पार्टी निकाला, तब भी उन्होंने 4 उम्मीदवार, उनका नाम है? हाँ, उनका नाम है और उनका काम भी है। अच्छा, नाम है, काम है। नारायण राणे on his remember he was not too keen to contest from here, but it was the BJP that insisted that because of the goodwill that he has in the constituency, it is him who should contest from here. आपको क्या लगता है, शिवसेना, एक तरफ शिवसेना है उद्धव ठाकरे की गढ़, दूसरे तरफ है शिवसेना शिंदे का, तो यहाँ पे अब बीजेपी लड़ रही है? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगा, क्यों? क्योंकि उसका काम धंधा भी सही है और जो हेल्प भी करता है वो सबके लिए। दूसरी बात है कि शिवसेना ये कुछ खाली नाम के लिए कुछ नहीं करती है, खाली आदमी लड़ाने के काम कर रही है, बाकी कुछ नहीं कर रही। हाँ, गरीब लोग, उद्धव वाले कि कितना आदमी लोग बेकार है, यानी यंगस्टर कितना बेकार है, तो लोग को नौकरी देता है करके कुछ नहीं किया। कम से कम उनको हेल्प तो करो, वो भी नहीं हो रहा है। वो तो यही मेन बात है। तो अभी वोट करेंगे तो ऐसा आपको लगेगा कि उद्धव ठाकरे के साथ कुछ धोखा किया बीजेपी ने, कि मोदी जी ने अच्छा काम किया है, वो सोच के वोट नहीं कर सकता है, वो कुछ नहीं किया है। इसने भी कुछ नहीं किया, किसने भी, वो अपने कर्म से वो ये हो गया है। अच्छा, हाँ, जैसे ठाकरे था, बाला साहब ठाकरे था, वो हिसाब से इसका कुछ नहीं है। 90% के 10% भी कुछ नहीं है इसका। वो इसका पहला क्या, खाली जबान पे आदमी खड़ा होता था, किसका, ठाकरे के, बाला साहब ठाकरे के। इसका तो क्या, ये आगे बढ़ो, हम पीछे से आते, कपड़ा संभालो, ये करो, वो करो, बाकी कुछ नहीं, समझा, बाकी यही बात। Bala Sahib Thackeray's true legacy has not been carried on by Uddhav Thackeray. That's what the people here say. They believe that a lot more could have been done when he was the chief minister. Saying this time around as well, they know that Narayan Rane is somebody who has worked a lot for the people, and this constituency especially is well known for that. So they've been speaking about that as well. Some hot vada paos being made here, as you're seeing. Early in the morning, we've come out as we're speaking to people to find out what is the situation on ground. What is it that people believe? Has the BJP betrayed the people here by splitting the Shiv Sena? That's the narrative that the Shiv Sena Uddhav faction is trying to say. But many here believe that that's not the case. It was their own weakness that led to the split of the party. The tussle between Rane and Thackeray goes back nearly 2 decades when in 2005, Rane, then in Shiv Sena, launched a rebellion along with 10 other Konkan-based MLAs. His move then led to strong resentment among the Sainiks in the Konkan region, and he was labelled a traitor of Bal Thackeray. Rane then joined the Congress and was re-elected. While he was considered unbeatable, the Konkan strongman and 6-term MLA from Kudal constituency was defeated by Vaibhav Naik, a Shiv Sainik, in 2014. In 2015,
Rane once again contested against Sena candidate Trupti Sawant from Mumbai's Bandra Assembly constituency, but lost the battle. The defeat was a feather in the cap for Uddhav Thackeray's leadership and raised questions about Rane's political career and his hold in the Konkan region. This time, he is making an emotional appeal by stating that it is his last election. But will it hold? So from 2019, there's a huge difference that has come about in the last few years. What is the situation now? Let's speak about that as well. We are in this morning breakfast place. Thank you for joining us. यहाँ पे इलेक्शन कैसा चल रहा है? कौन सी पार्टी यहाँ स्ट्रांग है? आपको कौन पसंद है? अभी इसी वक्त रत्नागिरी में वो शिवसेना वाला थोड़ा सा फॉर्म मध्ये है, इधर है ना फॉर्म में है. मराठी बोलेंगे हिंदी बोले? हिंदी बोलो. हाँ, वो शिवसेना वाला इसी वक्त फॉर्म में है. लेकिन हमारा ये लोगों का मुद्दा है कि इधर रत्नागिरी में कभी बड़ी बड़ी कंपनी आई नहीं, तो रोजगार सब खत्म हुआ है. वो यंग जनरेशन है, वो मुंबई पुणे में छोड़ के जा रहे हैं. तो इधर के जो ये है पॉलिटिक्स वाले, ये इस मुद्दे पर ध्यान दो कि बेरोजगारी कम करो, कंपनियां लाओ, बस इतना ही हमारा ये है. यहाँ पे जो रिफाइनरी खुलनी थी उसके ऊपर भी बहुत पॉलिटिक्स हुआ है. आपको क्या लगता है किस पार्टी ने यहाँ के लोगों को धोखा दिया है, या फिर किसने यहाँ पे रिफाइनरी आने के लिए नहीं दिया, या कंपनी आने के लिए नहीं दे रहे? कौन सी पार्टी? ठाकरे का टाइम ना, वो लोगों ने वो बोले कि इधर नहीं मांगता है, लेकिन हमारा ये मांगना है कि इधर आना चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनी आना चाहिए. उन लोगों ने रोक लिया है. तो यहाँ पे शिवसेना स्ट्रांग है. इधर पॉल्यूटेटेड कोई कंपनी हो पॉल्यूटेड कोकण में नहीं आना मांगता है. हमारे इधर का जो स्वामित्व है ना, हमारा जो जिसने नादाली के जमीन बेचा है वो प्रकल्प को दे रहा है, पर खुद जो है इस मिट्टी के रहने वाले है, तो हम पॉल्यूटेटेड कौन सा प्रकल्प इधर नहीं आना मांगता है. जो तरक्की करना है वो कोकण का सर्वेक्षण, कोकण का इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट सिचुएशन ठीक करके रखना मांगता है, और कुछ नहीं. और नौकरी के बारे में हर कितने जो लोग जवान अभी कुछ काम नहीं है, उसको काम मांगना मांगता है. और कोई की जात, रेस या कम्युनिटी और कौन के बात मत नहीं मांगना मांगता है. तरक्की के बारे में सोचकर मत देना मांगता है. अच्छा, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कौन रहेगी तब तरक्की होता है, डेवलपमेंट होता है? क्योंकि शिवसेना भी अभी 2 पार्टी में बदल चुकी है, तो कौन मुंबई में या महाराष्ट्र में उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेना मांगता है, उबाटा मांगता है, और बाकी जो पैसा फेंक के उसके पीछे दौड़ने वाले हैं. जो खुदा है ना शिवसेना, उसने आज कल महाराष्ट्र दिन है, उस हमको महाराष्ट्र नहीं देने वाले बम्बई, उस वक्त हमारे नौजवानों ने 105 का बलिदान दिया है, उसकी याद रखना मांगता है हर एक महाराष्ट्रियन, हर एक पॉलिटिशियन में है. पॉलिटिशियन अभी क्या रहे, कौन टुकड़ा फेंक रहा है उसके पीछे दौड़ रहे हैं, ये बंद होना मांगता है. और स्वाभिमान की जोत तेवत रखना मांगता है. उनका क्या राज है कि बम्बई उधर जोड़ने का तरीका है. मोरारजी ने भी किया था एक बार प्रकल्प, उसको वो नहीं लिया, इसलिए बम्बई महाराष्ट्र में ही रहना मांगता है. अभी क्या करें, अभी माहौल अच्छा नहीं चल रहा है. ठाकरे की आपने बात की, यहाँ पे तो लोग हमेशा उनको मानते आते हैं, अभी भी तो मानते हैं. उनके विचार कौन आगे लेके जा रहा है? आप बोल रहे उद्धव सेना की शिंदे सेना? ना, उद्धव सेना रह रहा है, उद्धव सेना रह रहा है. सेना ने क्यों छोड़ दिया क्या हमको मालूम नहीं है. जो स्वाभिमानी है ना, वो बाळासाहेब, वो जो लंगटीवा वाला है ना, जुरा 166 का शिवसैनिक, वो भी गांव में है, वो बाला साहब को ही मानता है और कुछ को नहीं पहचानता. बाला साहब बोलेगा, बाला साहब के पीछे रह गए. जो उसने बाला साहब का धनुष छिड़ा है ना, वो भी अच्छा नहीं लगता है. जो आम आदमी को, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ मैडम. Okay. So many in fact have been saying this, that those who know the legacy of Bala Saheb, we don't want anyone outside forces to come and split us. So the regional emotions that he is talking about as well. उन्होंने बात की बाला साहेब ठाकरे की. उन्होंने बोला कि कुछ लोगों ने उनको धोखा दिया है, उनके बेटे को धोखा दिया है. आपको लगता है कि वो ऐसे, बहुत लोगों को लगता है कि ऐसे कुछ लोग हैं जिनको ये भी लगता है कि शिंदे सेना उनकी विचारधारा आगे लेके जा रही है? शिंदे सेना उनकी विचारधारा आगे लेके जा रही है. हाँ, वो ठाकरे आगे लेके नहीं जा रहे हैं, वो किसी से और को मिल गए हैं. वो बाला साहेब का सपना था, वो उसने पूरा नहीं किया, इसलिए हमारा कुछ लोगों का गुस्सा है उनके पास. अच्छा, बस हाँ, उद्धव के ऊपर हमारा गुस्सा है. वो यही शिंदे से कुछ करेंगे. हाँ, अच्छा काम करो,
हम आपको वोट करेंगे बस। तो जब बाला साहेब जी थे तब शिंदे उनके साथ थे, या नारायण राणे जी भी उनके साथ थे, तो आपको लगता है कि वही उनकी विचारधारा आगे ले जा रहे हैं? लेट्स ऑल्सो स्पीक टू द यूथ एंड फाइंड आउट वेदर दीज इश्यूज आर मोर dominant with the youth of not just Ratnagiri but across Maharashtra as well. When you go to cast your vote, क्या सोच के वोट देते हैं आप? Do you think कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि शिवसेना एनसीपी को स्प्लिट कर दिया, या आप सोचेंगे कि who is the party that's going to bring me jobs? मैम एक्चुअली बात ऐसी है कि कोई भी अपन किसको भी वोट दो, आज अपन कांग्रेस को वोट दिया तो वो कल जाके बीजेपी में मिल जा रहा है, उसका हमारा वोट का कुछ वैल्यू नहीं है। मतलब हम यंग जनरेशन है, हमको इस लफड़े में पढ़ना नहीं है कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, हमको चाहिए जॉब। मेन बात हमारा जॉब है, हमको फ्यूचर सिक्योर करना है। हम इधर अभी लड़के हैं गांव में से सिटी में जा रहे हैं जॉब को, तो इधर कुछ नहीं है। तो कोकन इज प्रॉपरली बेस, मतलब पर्यावरण के लिए बेस्ट है, एनवायरमेंट के लिए बेस्ट है। तो गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए कि इधर एनवायरमेंटल डेवलपमेंट करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि इधर की जो यूथ है वो मुंबई ना जाके इधर ही कुछ सभी कर सके, वर्क कर सके। और उनकी जमीन है, वो जो बोल रहे हैं कि उनकी जमीन थी वो कुछ ब्लैक कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। इसके सब इन लोगों के ऊपर डिपेंड है कि वो किसके जमीन दे। प्रकल्प आना चाहिए, वो नया आना चाहिए, प्रॉपर लोगों को पता है मेरे से ज्यादा, बट जो एनवायरमेंटल है वो बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि हम किसी को भी वोट करें वो पार्टी बदल लेते हैं, तो जब आप वोट करते हैं थोड़ा गुस्सा रहता है मन में, कह रहे हैं हमको वोट तो कर रहे हैं लेकिन हमारा वोट कहाँ चला जाएगा? तो आपको लगता है कि ये गुस्सा रहेगा किस पार्टी के अगेंस्ट रहेगा? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उद्धव जी वीक थे इसीलिए स्प्लिट हो गया, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी ने स्ट्रांग है इसीलिए उनको ले लिया है। आपको क्या लगता है? एक्चुअली देयर इज नो वन पार्टी इज स्ट्रांग जस्ट बिकॉज ऑफ ईडी। आप देख रहे हैं कि जस्ट महाराष्ट्र में की बात नहीं है, हर स्टेट में की बात है, दिल्ली की बात है और तमिलनाडु की और 2-3 स्टेट की बात है। बीजेपी क्या कर रही है, जो सत्ता में जो पार्टी है उसको ईडी का, उसके कार्य मतलब नेता लोग रहते हैं उनको ईडी का डर दिखा के कन्वर्ट कर रहे हैं बीजेपी में। कितना आप देखते हैं डायरेक्ट इंटेक हो रहा है बीजेपी में, बड़े बड़े लोग बीजेपी में आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं वो भी सोचना चाहिए ना। ऐसा थोड़े रहता है कि सत्ता के लिए जा रहे हैं, मतलब दो चीजें हो सकती है, एक तो ईडी की भीति रह सकती है, नहीं तो सत्ता के लिए जा सकते हैं। बाकी ये लोगों का जो विकास है वो हो रहा नहीं ना, ये खुद का पेट भर रहे हैं, ऐसा हो सकता है ना। ओके, तो ये गुस्सा रहेगा मन में। आपको क्या लगता है जब आप वोट डालते हैं तो ये सब सोच के डालेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, पॉलिटिकल इतना चेंज हो गया है 219 से लेके अब तक बहुत कुछ चेंज हो गया है, वो सोचेंगे कि यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, ये सोच के वोट डालेंगे? नहीं, डेवलपमेंट के लिए वोट करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट कहाँ है? रत्नागिरी में तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। अभी इलेक्शन आया बोल के इसलिए तो रास्ते का काम चालू हो गया है, नहीं तो इतने साल से अभी तक किसी ने देखा नहीं है। हाँ, एक है कि उद्धव साहब के जब ये थी हुकूमत थी पूरे महाराष्ट्र के अंदर, तब आज तक रत्नागिरी में हिंदू मुस्लिम कभी हुआ नहीं, लेकिन आज तक अभी ये चालू होने वाला है। अगर उद्धव साहब नहीं आए तो ये वापस से रत्नागिरी में भी हिंदू मुस्लिम का होने वाला है। इसलिए हम चाहते हैं कि उद्धव साहब भी आ जाए और सबको साथ में लेके चले। यहाँ पे नारायण राणे खड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से, वो भी शिवसेना में रह चुके हैं बाला साहेब के टाइम से। आपको लगता है कि जो लोग हैं जो उस समय का देखे हैं दौर, वो उनका सपोर्ट नारायण राणे के साथ रहेगा या फिर उद्धव सेना के साथ रहेगा? नहीं, अभी तो उद्धव साहब के साथ ही रहेगा हमारा। क्यों? अच्छा काम किया उन्होंने, हमारे लिए भी सबको साथ में लेके चले। हिंदू मुस्लिम कभी हुआ नहीं आज तक रत्नागिरी में, न होएगा उनके राज्य में। महाराष्ट्र में उनका आना जरूरी है, तभी डेवलप भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अच्छा काम किया उन्होंने जब गवर्नमेंट में है। यहाँ पे जॉब्स वगैरह भी, डेवलपमेंट भी जो होगा वही लेके आएंगे। वही लेके आएंगे। अच्छा, ओके, तो वी जस्ट सॉ बोथ साइड्स ऑफ इट। सम से दैट उद्धव सेना डिड नॉट डू मच व्हेन ही वाज द चीफ मिनिस्टर. Many believe that he wanted to work, he has done a lot, he ensured a very peaceful environment here, but there are others who are trying to not just split parties but also bring in other forces here in Maharashtra. So that's a regional sentiment as well that the Shiv Sena, Uddhav faction is speaking about, saying that their party has been split by the outside forces, and that's an emotion that remains with those, especially here in areas like Sindhudurg, in Ratnagiri Sindhudurg constituency, where it's a Shiv Sena bastion. It has always been a Shiv Sena bastion. आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन सी पार्टी स्ट्रांग है, किसने अच्छा काम किया है? इधर पार्टी तो शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी है। तो बाला साहेब ठाकरे की कौन सी पार्टी है, शिंदे वाली या उद्धव वाली? उद्धव वाली ओरिजिनल पार्टी है उद्धव बाला साहेब ठाकरे। तो उसने काम भी किया, विनायक राउत साहब है ना, उसने काम भी किया है, बहुत अच्छा है, जन संपर्क उसका अच्छा है, अच्छा आदमी है वो, और सिंपल आदमी है,
लपड़ा झगड़ा कुछ नहीं उसका रहता है। हाँ, और नारायण राणे की पार्टी की में हमेशा लपड़ी झगड़े रहते हैं, लोगों को पसंद नहीं हो। और यहाँ पे आप जब वोट डालते हैं तो यहाँ विनायक राउत और नारायण राणे को देख के डालेंगे कि मोदी सोचेंगे कि मोदी या राहुल गांधी या ऑपोजिशन से कोई लीडर प्रधानमंत्री बनेगा? मोदी तो जुमलेबाज है। अभी भारत के हर जनता को मालूम हुआ है, मोदी तो जुमला बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। हाँ, अभी वो अच्छा काम नहीं किया है। क्या काम किए बोलो? युवा को अभी तक जॉब नहीं मिला है, तो हम लोग स्विगी में काम कर रहे हैं। मैं गल्फ रिटर्न हूँ, 20 साल गल्फ में रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी मेरे लिए जॉब नहीं है। कांग्रेस के जमाने में जो बनाया था ना वो भी बेच रहा है, रेलवे, एयरपोर्ट और बहुत सारा वो बेच रहा है। तो खुद कुछ कर नहीं सकते, दूसरे ने बनाया वो भी बेच डालते हैं। तो उस पर अभी किसका भरोसा नहीं रहा मोदी पर। यहाँ पे लेकिन शिंदे सेना ने ये कहा है कि हम हैं जो विचारधारा आगे लेके जा रहे हैं बाला साहेब ठाकरे की, कि उद्धव सेना बहुत वीक हो गए हैं, वो कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं, लेकिन हम सही जो उनका जो विचारधारा था हिंदुत्व का वो हम आगे ले जा रहे हैं। आपको उस पर क्या लगता है? वो नौटंकी है उसकी। असल में ओरिजिनल शिवसेना कौन है, बाला साहब के विचार कौन रख रहा है, कौन बोल रहा है, वो सबको मालूम है। जो रात को यहाँ भाग जाते हैं घर से, उसके ऊपर कौन भरोसा करे, इसको कौन से विचार कर रहे हैं वो, उस पर किसी को भरोसा नहीं। वो क्या बोले, आज क्या बोले, कल क्या बोलेंगे, आज इधर कल किधर जाएंगे, उसके ऊपर किसी का भरोसा नहीं। एक बार जो पार्टी बदल दिया, बार बार पार्टी बदल सकती है। आज तक मैडम, आज तक इन लोग ने कभी किसी के घर में आके पूछा नहीं कि क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को, क्या नहीं। लेकिन उद्धव साहब के आदमी लोग आके हमेशा हफ्ते में एक बार तो भी राउंड अप कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, आपको बोलो, हम लोग हल करेंगे। लेकिन ये लोग कभी आज तक किसी के दरवाजे के ऊपर आए नहीं पूछने के लिए भी। और एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो अगर आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार आएगी तब आपको एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे अच्छा होगा, या फिर उद्धव सेना कांग्रेस आएगी तब एम्प्लॉयमेंट अच्छा होगा? उद्धव सेना जी, उद्धव महाविकास आघाड़ी, इंडिया गठबंधन। या अभी देखो उद्धव साहब, एनसीपी भी स्प्लिट हो गया है। अभी इसको सबको मालूम है, जनता को, महाराष्ट्र के उद्धव साहब जब 2.5 साल मुख्यमंत्री थे कोरोना के काल में, उसने बहुत अच्छा काम किया। और जो भी आश्वासन दी थी ना, सब पूरी की। और सबको मालूम है जो बोलते हैं ना वो करते हैं। तो ये मोदी जैसा बकवास नहीं, झूठ नहीं बोलते, जुमले नहीं बोलते। हाँ, वो जुमला नहीं कभी बोलते, जो बोलते वो करके दिखाते। मुंबई में भी बहुत से काम किए, जो बोला वो किया। अभी कोकन में भी जो बोला वो किया। अभी वो देखो इधर बोला, जो अणु ऊर्जा के खिलाफ जो लड़ रहे थे उसके साथ में आया, लास्ट तक उसके साथ रहे। रिफाइनरी का इधर विरोध कर रहे लोग, उसके साथ में लास्ट तक बोले उसके साथ रहेंगे। बीच में ऐसा कुछ धोखा नहीं देते किसी को, इसलिए इसके ऊपर भरोसा है लोगों का। जो बोलते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो जो बोलते हैं वो करते हैं, भरोसा उनके ऊपर है लोगों का। That's the word coming in. Many believe that it was the BJP that fractured Shiv Sena and the other parties as well. They say that our vote has gone to waste after this happened, and we don't want that to happen. And we believe that Bala Saheb's legacy will be carried forward by his son Uddhav. For both sides, this is not just a battle for the Ratnagiri-Sindhudurg Lok Sabha seat, but one that determines who really has the support of the people of the Konkan region.